नेक्स्ट जो है हमारा सीसीपी में नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स. Earlier we have seen the types of LC and their beneficiary issuer, opening bank, issuing bank, advising bank, negotiating bank, confirming bank. These are the banks involved in LC transactions. Now we come to the point. What is the implications on letter of credits for bankers? If you are going for opening letter of credits, if you are going to sanction the letter of credit, what is the implications on the credit of bankers? Then it says that, friends, once again I must tell that I am reading line by line these books because IIBF exam is not so easy. Most of the staffs are still struggling for clearing the CIB and CIB exams since last 4 years, 5 years or 10 years or so many years. ठीक, आइए देखते हैं फ्रेंड्स. द इशूइंग बैंक क्या होता है इसमें? द इशूइंग बैंक एक्ट ऑन बिहाफ एंड अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ एप्लीकेंट. इशूइंग बैंक इसमें किसके इस पे काम करता है? एप्लीकेंट के बिहाफ पे. हु इज द बायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है. Banker should view request for opening a clean letter of credit and differentiated in document from letter of credit supported by documents showing movement of goods. ठीक है, ये आपको देखना है. Banker should view request for opening of a clean letter of credit with circumspection. ठीक है. Draft under the letter of credit are drawn on the issuing bank or the confirming bank and not on the applicant of the letter of credit. ठीक है. ये ड्राफ्ट जो होगा लेटर ऑफ क्रेडिट का वो किस पे ड्रॉन होगा? इशूइंग बैंक पे होगा या कन्फर्मिंग बैंक पे होगा, लेकिन अप्लीकेंट पे नहीं होगा. Thus, applicant liability under letter of credit will not be visible on the draft under the letter of credit. The bank's liability is unconditional and absolute. बैंक की liability जो है वो क्या है? Unconditional. उसमें conditional नहीं होती है. ठीक है. और लेटर ऑफ क्रेडिट में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गया तो एज पर द टर्म एंड कंडीशंस बैंक आर बाउंड टू बी make payments while after receiving the proper document from the supplier or suppliers bank. ठीक है. और ये supplier और suppliers bank. Then the bank must pay if the documents are in order and in terms of credit are satisfied. उसको देना ही पड़ेगा. Any dispute between the buyer and seller must be settled between themselves. इसमें अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं है. आप उन दोनों को आपस में सेटल करना होगा. If documentary credit is irrevocable and independent, the bank must pay when demand is met. Irrevocable जहाँ लिखा हुआ है मतलब आप अपने इससे पीछे नहीं जा सकते, तो आपको किसी भी हालत में इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा जब डिमांड आपका आ गया. Since the bank has its reputation at stake, it has to make the payment. ठीक है. Except in case of fraud, which is extremely difficult to prove in case of letter of credit, as bank deal only in document, the bank are not concerned with the underlying transactions. ठीक है. देखिए, फ्रॉड के केसेस में आप रोक सकते हैं, बट ये हमारे लिए पता करना मोस्ट डिफिकल्ट है कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डन अंडर दिस लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है. तो वेन एवर द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द issuing bank is bound to make the payment immediately without any ifs and buts. Issuing bank may consider to hold the transfer until and unless if any frauds are happening this under this letter of credit. ठीक. फिर कहता है the bank should therefore make a thorough assessment of the applicant's ability and willingness to pay the amount of LC as and when due. ठीक है. ये हमें देखना पड़ेगा अप्लीकेंट की एबिलिटी और विलिंगनेस क्या है जब LC जब ड्यू होगा. जैसे हमने मान लिया राइस मिल के लिए जो है हमने थाईलैंड की कंपनी के लिए जो है 1,80,00,000 रुपए का LC इशू किया और सप्लाई ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. ठीक है. LC मैच्योर हो गया आफ्टर 1 ईयर्स, सप्लाई हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, रेडी टू हो गया. तो फिर उसके बाद हमने LC का पेमेंट कर दिया. पेमेंट करने के बाद उसका टर्म लोन खोल के उसका LC का पेमेंट कर दिया. मीन्स हमने उसका
उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। इट वुड बी ए प्रूडेंट प्रैक्टिस नॉट टू ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु हैव नो अदर डीलिंग्स विद द बैंक्स, ठीक है। हम लोग उसी आदमी को एलसी देते हैं जो नॉर्मली हमारा कस्टमर होता है। अनलेस द बैंक इज इन अ पोजीशन टू सिक्योर द लायबिलिटी विद सब्सटेंशियल रियलाइजेबल security and also supported by the cogent reasons for the applicant to approach the bank only for this transaction to open letter. Unless the bank is in a position to secure the liability with substantial realizable security. अगर कोई परिचित नहीं है आपका, अगर आपका कस्टमर नहीं है, नोन नहीं है, तो आप क्या करते हैं, पूरा फुल्ली सिक्योर करते हैं, भैया पहले हमारा सिक्योर करो फिर हम तुम्हारा देखते हैं, ठीक है, यही होता है। And also supported by coordinate region of applicant to approach the bank only if the transaction to open the letter of credit. In sight letter of credit, sight letter of credit क्या हो गया, तुरंत immediate, देखते ही पेमेंट। The payment obligation of issuing bank is immediate on receipt of document under the letter of credit and they comply with the term and conditions of the LC, ठीक है। अगर टर्म एंड कंडीशन साइट एलसी के केस में क्या होता है, सॉरी, साइट एलसी के केस में क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट है, इमीडिएट पेमेंट है। एज एंड व्हेन आपको एज एंड व्हेन जब आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होता है, यू मस्ट हैव टू पे द एलसी इफ टर्म एंड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। टू सेफगार्ड अगेंस्ट द डिफॉल्ट्स बाय द एप्लीकेंट द बैंक कुड टेक वन ऑफ द फॉलोइंग। मान लीजिए एप्लीकेंट का जो है वो सेफगार्ड करने के लिए बैंक क्या कर सकता है, साइट एलसी केस में सॉरी हाँ, ask for a deposit of a substantial percentage of letter credit amount while issuing the letter credit। हम लोग क्या करते हैं, 25% मार्जिन लेते हैं, चाहे वीजीओ एलसी हो, ठीक है। obtain a portion of amount of a letter of credit by way of margin से 25% of deposit मैंने पहले बोला। simultaneously ensure by due verification of the cash flow of the applicant that he would be in a position to pay the balance amount on receipt of document and the letter of credit on due date as may the case, ठीक है। होता है 25% हमने मार्जिन लिया, 75% का हमने जो है अपनी तरफ से ये किया, मार्जिन लगाई थी, बैंक लोन देके इसको एलसी दिया। एलसी का टर्म था 1 ईयर का, 12 मंथ का। सप्लायर ने अपनी प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई कर दी, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया, प्लांट रनिंग में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर मैच्योर हो गया, तो फिर हम क्या किया, सप्लायर को पेमेंट हम जो है दे दिए, इससे लेकर 25% उसका था, 75% हमने बुक किया। बुक करने के बाद हमने सप्लायर को पेमेंट दे दिया। इफ अप्लीकेंट इज enjoying a credit facility against the hypothecation place of stock in trade, a deposit margin as above may be obtained and goods under letter of credit may be taken as security and drawing allowed there against, ठीक है। अगर मान लीजिए कहता है if the applicant is enjoying a credit facility against hypothecation place of stock in trade, a deposit margin as above may be obtained and goods under the letter of credit may be taken as a security and drawing allowed there against. The liability under the LC is met using the margin as well as the advance against the goods under the LC, ठीक है। कहता है the acceptability of arrangement letter above is high among the Indian banks, ठीक है, सबसे ज्यादा है। However, the individual cases will have to be approved at appropriate level and acceptability of goods as a security for the advance to be granted specifically looked into। गुड्स जो है आप सिक्योरिटी के रूप में कम ही लेते हैं, ठीक है। कहता है एज लेंडिंग इज डन अगेंस्ट गुड्स रिसीव्ड अंडर द एलसी, the valuation aspect has to be gone into so that the bank does not become an unwitting party to over financing, ठीक है। एज लेंडिंग इन डन, मान लीजिए जब हमने दे दिया लोन अगेंस्ट द गुड्स रिसीव्ड अंडर द एलसी के थ्रू, वैल्यूएशन एस्पेक्ट हैज टू बी गॉन इनटू द, वैल्यूएशन आपको कराना है सो दैट बैंक क्या हो, डज नॉट बिकम ए अनविटिंग पार्टी, ठीक है, टू ओवर फाइनेंसिंग, ज्यादा फाइनेंसिंग के लिए उसमें पार्टी ना बन जाए, ठीक है। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय अ कंप्राइजिंग
LC वैल्यू ऑफ द गुड्स विद द मार्केट वैल्यू प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ गारंटी ऑफ एडवांस। ठीक है, LC वैल्यू जो हम LC जो खोल रहे हैं और जो मार्केट से सामान मंगाना है उस सामान का रेट्स के हिसाब से LC ओवर फाइनेंस तो नहीं हो रहा है। In view of the bank's liability under the letter of credit, it would be good practice to verify the credentials of the beneficiary of the letter of credit where large amount are involved। ठीक है, in view of bank's liability under the letter of credit, मान लिया लेटर ऑफ क्रेडिट में तो मैंडेटरी है, बैंक इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग इशू करते हैं मोस्टली और यही चलता भी है। ठीक है, अनकंडीशनल इररिवोकेबल, तो इट वुड बी अ गुड प्रैक्टिस टू वेरीफाई द क्रेडेंशियल ऑफ बेनिफिशियरी। सेलर, बेनिफिशियरी कौन है? सेलर। ठीक है, अब ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर लार्ज अमाउंट आर इन्वॉल्व। ठीक है, जहाँ पर लार्ज अमाउंट आपका इन्वॉल्व हो तो हमें वेरीफाई करना। इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ टोटल नंबर, इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ ए नंबर ऑफ ए बैंक, it is a practice of number of bank to stipulate a cut-off amount beyond which a status report is obtained on the seller of goods the beneficiary of LC। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग किस प्रैक्टिस, क्या है हमारा प्रैक्टिस है नंबर ऑफ बैंक टू स्टिपुलेट ए कट ऑफ अमाउंट। हम लोग कट ऑफ अमाउंट डाल दिया है, जैसे अभी क्या है हमारा पेट्रोल रिम्बर्समेंट है, मान लीजिए अब मार्केट में 110 भी है, कभी कभी चला जाता है 112 भी चला जाता है, लेकिन फिक्स कर दिया कि भैया इस स्टेट के लिए 108 रुपये है। तो ये क्या हुआ, हमने एक गुड्स के लिए कट ऑफ अमाउंट फिक्स कर दिया, चाहे आपका जो भी प्राइस हो, बट हम इसी रेट पे आपको उसको एक्सेप्ट करेंगे और एलसी इशू करेंगे। ठीक है, अब होता है यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट। यूजांस लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? यूजांस मतलब टाइम पीरियड, बीच में अगर किसी एलसी में जो है मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा हुआ है, वैलिडिटी डे लिखा हुआ है, तो वो यूजांस हो गया। ठीक है, यूजांस एलसी आर ऑल्सो नोन एज डीएलसी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, वाइडली यूज इन बिजनेस इन इंडिया, ये इंडिया में यूज होता है। ऑल्दो अपेरेंटली ए नॉन बोरोइंग फैसिलिटी, the utility of this instrument is to provide the purchasing power to the business is well recognized। ठीक है, ये क्या है? apparently a non borrowing facility, non borrowing facility है। the utility of instrument in providing the purchasing power of business is well recognized। of late business unit needs more and more of this facility to buy the goods on credit under letter of credit and thereafter continue arrangement with the letter of comfort। ठीक है, क्या है? of late business unit need more and more this facility, जो बिजनेस यूनिट है टू बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट, अधिकतर जो बिजनेस यूनिट है क्रेडिट पर जो है उसको अपना गुड्स लेता है। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट देता है एंड देयर आफ्टर कंटिन्यू अरेंजमेंट विद लेटर ऑफ कंफर्ट, लेटर ऑफ कंफर्ट के बेसिस पर अपना अरेंजमेंट जारी रखता है, विच विल टेक प्लेस ऑफ द एलसी अंडर द टोटल एलसी लिमिट। ठीक है, फॉर द बायर्स क्रेडिट, दिस इज ए कॉमन occurrence in India। The popularity is so high that Indian banks have now come to recognize the fact DALC is no way different from the fund-based facility। ये fund-based facilities से different नहीं है, like say cash credit or loan। Accordingly, the treatment given in proposal insofar DALC is concerned has undergone a change। This facility is deemed as a fund-based facility for the purpose of fixation। इसको हम लोग जो है DALC जो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, इसको हम लोग फंड बेस्ड फैसिलिटी ही मानते हैं और उसका असेसमेंट जो है उसी के हिसाब से होता है। फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको कहता हूँ, मैं एक लाइन बाय लाइन रीडिंग इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन पता चले, कोई चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, एज गुड्स आर रिलीज्ड आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस है ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो क्या होता है जब गुड्स कब रिलीज होता है? आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ इशूइंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक। इशूइंग बैंक या कन्फर्मिंग बैंक एक्सेप्ट कर देता है, द एडवांस बिकम ए फुली अनसिक्योर्ड वन। एडवांस होता है वो फुली अनसिक्योर्ड। इट इज देयरफॉर एब्सोल्युटली एसेंशियल that the bank must have full confidence in credibility and creditworthiness of the borrower who are given the facility। ठीक है, हम लोग एक चीज मान के चलिए, किसी बोरोवर जो हमारा टेस्टेड बोरोवर है, जिसको हम लोग टेस्टेड बोलते हैं, टेस्टेड बोरोवर है, उसी को ये फैसिलिटी हम लोग देते हैं। The limit sanctioned by way of DLC should be have a definite correlation with the creditors। ठीक है, definite correlation होना चाहिए। Credit received under this usance period mentioned in LC mentioned होना चाहिए, which is used in computation of the working capital। ठीक है, this is important because the borrower will have surplus fund on hand
ड्यू टू मिसमैच बिटवीन द क्रेडिट रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय हिम। क्या होता है, देखिए जब हम लोग कोई लिमिट सैंक्शन करते हैं, लिमिट सैंक्शन बाय वे ऑफ डीएलसी, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, शुड हैव ए डेफिनेट कोरिलेशन, किसके साथ, विथ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के साथ, विच इज यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द बोरोवर विल हैव ए सरप्लस फंड, बोरोवर के पास क्या हो जाएगा, सरप्लस फंड ऑन हैंड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन क्रेडिट रिसिप्ट एंड क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय देम, ठीक है, दोनों के अंतर में क्या होगा, मिसमैच होगा, इसलिए हमको ध्यान रखना। मोरोवर सच एक्स्ट्रा फंड एट लो कॉस्ट encouraging investment in speculative ventures and those avenues where bank is generally difficult to forthcome, ठीक है। अब देखिए रिस्क क्या है एसोसिएटेड, रिस्क एसोसिएटेड विद ओपनिंग इंपोर्ट एलसी, रिस्क एसोसिएटेड इन ओपनिंग एक्सपोर्ट एलसी। अगर हम इंपोर्ट एलसी खोलते हैं तो उसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है, कहता है द बेसिक रिस्क एसोसिएटेड विद इशूइंग बैंक व्हाइल ओपनिंग अप एलसीआर। देखिए इशूइंग बैंक के साथ क्या क्या रिस्क है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इंपोर्टर कुड चेंज एडवर्सली during the period of LC, ठीक है। The bank is responsible to honor the draft under the LC and adverse change of importer financial condition will impact। इसमें क्या हो सकता है कि जो इंपोर्टर है that is एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के साथ कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ LC। तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑनर द ड्राफ्ट अंडर द LC एंड एडवर्स चेंज इन इंपोर्टर, अगर कुछ चेंज हो गया उसके साथ तो क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा बैंक के ऊपर, ठीक है। द एक्सपोर्टर माइट शिप सबस्टैंडर्ड गुड्स, स्टैंडर्ड गुड ना भेजेगा एक्सपोर्टर, जो सप्लायर है, जो बेनिफिशियरी है, दैट विल अफेक्ट द इंपोर्टर एंड इवेंचुअली द प्रॉब्लम विल कम इन फाइनेंसिंग बैंक। अगर मान लीजिए ठीक है उसने बढ़िया सामान मंगाया और उसने जो है मीडियम क्लास का सामान भेज दिया, तो उसको लॉस हो गया ना, इंपोर्टर को लॉस होगा तो कमाई नहीं होगी, कमाई नहीं होगा तो उसको बैंक को कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। वैसे तो पेमेंट बैंक मजबूर है कि इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उसे देना ही देना है, ठीक है। द इंपोर्टर बैंक यूजुअली ऑब्टेन ए क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द सप्लायर्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग बैंक इन द सेलर कंट्री, ठीक है। नॉर्मली क्या करता है इशूइंग बैंक और इंपोर्टर बैंक, इशूइंग बैंक, इंपोर्टर बैंक, इंपोर्टर बैंक, ठीक है, इशूइंग बैंक, इंपोर्टर बैंक या एप्लीकेंट बैंक, ये क्या करता है, जो सेलर का बैंक है या जो बेनिफिशियरी का बैंक है वहाँ किसी बैंक से या करस्पॉन्डिंग बैंक से उसका कंफर्मेशन कराता है सप्लायर का, वेदर वो सही है या गलत है। समटाइम्स ए रिपोर्ट ऑफ क्रेडिट एजेंसी लाइक डन एंड ब्रैडस्ट्रीट में भी अवेलेबल, कई कई ये रिपोर्ट अवेलेबल होता है। एज अ पार्ट ऑफ मेकिंग अवेलेबल द एलसी लिमिट टू द बोरोवर, द बैंकर विल असेस हिज एलसी रिक्वायरमेंट लाइक अदर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, अदर वर्किंग कैपिटल की तरह उसका असेसमेंट करता है। कंट्री रिस्क तीसरा हो सकता है, कंट्री रिस्क किसी देश में कुछ कोई इवेंट हो गया, जैसे ईरान में हो गया, इजराइल में हो गया, अभी इजराइल में चल रहा है, ठीक है, तो ये कंट्री रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। दीज रिस्क अराइज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री, ठीक है। टू मैनेज द इशू मोस्ट बैंक हैव ए स्पेशलाइज्ड यूनिट व्हिच कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सपोजर दैट बैंक विल एज्यूम फॉर ईच कंट्री। हमारे यहाँ भी जो है हर कंट्री की रैंकिंग जारी होती है, ये मेरे हिसाब से शायद एक्सिम बैंक इशू करता है, ठीक है, कंट्री का रैंकिंग क्या है इन्वेस्टमेंट के मामले में या उसके मामले में, ठीक है। जहाँ पे सर ये होता है वो उस कंट्री को अवॉइड करना चाहिए। कंट्री रिस्क हो गया। अब देखिए इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट इन एडिशन टू द गाइडलाइंस इनोवेटेड, जो गाइडलाइंस ऊपर में है, द फॉलोइंग एडिशनल इंस्ट्रूमेंट शुड बी फॉलोड बाय ब्रांचेज इन कनेक्शन विद द एस्टैब्लिश द इंपोर्ट एलसी। इंपोर्ट एलसी को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस और लेना चाहिए। इंपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए, it should be ensured that the goods to be imported under LC are covered by the valid import license where required, issued either in the name of the customer or preferably transferred in his favor, ठीक है। तो it should be ensured that the goods to be imported under LC are covered by valid import license, उसके पास import license होना चाहिए, where required, issued either in the name of the customer or properly transferred in his favor।
उसके फेवर में ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, बैंक शुड ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, कहता है बैंक शुड ऑल्सो सेटिस्फाई themselves about the identity of importer, importer की identity, and that person mentioned in the import license, transferring the license and the importer are one of। देखिए क्या है, बैंक को खुद से सेटिस्फाई होना पड़ेगा अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ इम्पोर्टर, मतलब एप्लीकेंट, एप्लीकेंट। ठीक है, तो एंड दैट पर्सन मेंशन इन इम्पोर्ट लाइसेंस, दैट इज ट्रांसफरी ऑफ द लाइसेंस एंड इम्पोर्टर आर सेम। ट्रांसफरी और इम्पोर्टर सेम है, इसके लिए इशूइंग बैंक को खुद से सेटिस्फाई हो। अमॉन्ग अदर थिंग्स द अमाउंट ऑफ द लाइसेंस और बैलेंस अवेलेबल देयर अंडर, द टाइप ऑफ गुड्स परमिटेड, द कंट्री ऑफ ओरिजिन, the validity period, limiting period for imports, any special conditions imposed etc should be scrutinized to ensure that import is duly authorized। जब भी हम import को देखते हैं, ठीक है, कहता है among other things। ठीक है, इसके अलावा भी अमाउंट ऑफ लाइसेंस क्या है और द बैलेंस अवेलेबल देयर अंडर, टाइप ऑफ गुड्स क्या परमिट हुआ है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वैलिडिटी पीरियड क्या है, लिमिटिंग पीरियड फॉर इंपोर्ट्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ वैल्यू के हिसाब से, एनी स्पेशल कंडीशंस कोई तो नहीं है। ठीक है, शुड बी स्क्रूटनाइज इंश्योर दैट इंपोर्ट इज ड्यूली ऑथराइज, इंपोर्ट ऑथराइज्ड होना चाहिए। इन पार्टिकुलर द फॉलोइंग क्लॉज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल क्रेडिट इंपोर्ट्स गुड्स अंडर आईबीआरडी क्लॉज। ये जो लाइंस है आपको आईबीआरडी क्लॉज के हिसाब से उसमें इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, क्या लिखता है, गुड्स फाइनेंस अंडर दिस क्रेडिट मस्ट नॉट ओरिजिनेट इन और शिफ्ट इन ए वेसल फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईबीआरडी एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। ये हमें मेंशन करना है। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन ऑल लेटर क्रेडिट फॉर इंपोर्ट गुड्स अंडर आईबीआरडी। क्या कहता है, गुड्स फाइनेंस अंडर दिस क्रेडिट मस्ट नॉट ओरिजिनेट in or be shipped in a vessel flying the flag of any country। ठीक है, which is not a member of IBRD except स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को छोड़ के ये जो है मस्ट नॉट फ्लाइंग। ठीक है, चला गया, गुड्स एंड फाइनेंस मस्ट नॉट ओरिजिनेट और इन और बी शिप्ड इन अ वेसल फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ एनी कंट्री। ठीक होना, मतलब जिसमें कंट्री का झंडा लगा हो, विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ आईबीआरडी एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड को छोड़ के। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल, द टर्म एक्स पेमेंट स्टिपुलेटेड, ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल, द टर्म पेमेंट स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट शुड फॉल विद इन द परमिटेड मेथड ऑफ पेमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा। ठीक है, द टर्म पेमेंट स्टिपुलेटेड इन द क्रेडिट शुड फॉल विद इन द परमिटेड मेथड पेमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फेमा। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। In case of forward contract has to be arranged, an undertaking shall be obtained from the applicant agreeing to accept the rate ruling on date of which the forward contract is arranged. A separate forward contract margin may be assessed and obtained with the condition to provide additional margin if mark to market position related to underlying outstanding forward contract liability turns adverse। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कहता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंज किया गया है एंड, तो उसमें क्या होगा, एक अंडरटेकिंग हमें लेना है। ठीक है,
किससे? फ्रॉम एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब इंपोर्टर। एग्रीइंग टू एक्सेप्ट द रेट के बारे में ऑन द डेट ऑफ विच द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अरेंज, जिस डेट को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अरेंज किया जाता है। ए सेपरेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन में बी असिस्ट, सेपरेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन में बी असिस्ट एंड ऑब्टेन्ड विद द कंडीशन टू प्रोवाइड एडिशनल मार्जिन, अगर एडिशनल मार्जिन के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट लेना है। इफ द मार्क टू मार्केट पोजीशन रिलेटेड टू अंडरलाइंग आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी टर्न एडवर्स, अगर कोई एडवर्स ट्रांजेक्शन ये हो जाता है, लायबिलिटी एडवर्स हो जाती है, तो हमें एडिशनल मार्जिन के लिए जो है बॉरोवर से एक अंडरटेकिंग लेना है। जैसे मान लीजिए व्हेन 100% मार्जिन इज रिकवर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट, they should be informed that the margin represent a mere deposit against the proposed credit and that all the bills negotiated under will have to be retired at the rate of exchange ruling at that time, ठीक है, unless the rate has been fixed under the forward contract। मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई इशू हमने किया तो कहता है कि अगर हमने 100% मार्जिन ले लिया तो दे शुड बी इन्फॉर्म दैट द मार्जिन रिप्रेजेंट आर mere deposit against the proposed credit and that all the bills negotiated under thereunder will have to be retired, उसको क्लियर किया जाएगा एट द रेट ऑफ एक्सचेंज रूलिंग एट दैट टाइम। जब हम उसको क्लियर करेंगे तो उस समय जो मार्जिन लगेगा जो भी रेट फ्लक्चुएशन के कारण, तो वो मार्जिन लिया जाएगा अनलेस रेट हैज बीन फिक्स अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में रेट जब तक फिक्स नहीं किया गया है। वेयर एलसी आर टू बी ओपन फॉर द इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी द प्रोजेक्ट, द एलसी ओपनिंग ब्रांच शुड इंश्योर दैट, मशीनरी के लिए जब आप ये लेते हैं, ठीक है, द बेनिफिशियरी ऑफ एलसी आर वेल रिपोर्टेड, जो बेनिफिशियरी होना चाहिए एलसी का वो क्या होना चाहिए? रिपोर्टेड होना चाहिए एज रिवील्ड बाय द ओपिनियन रिपोर्ट्स ऑफ द बेनिफिशियरी, ठीक है। The LC are established in favor of only those beneficiaries who were indicated in the project report or financial institution sanction endorsement। LC are established किसके फेवर में खोलना चाहिए? In favor of only those beneficiaries who were indicated in the project में indicate किया गया and the financial institution sanction endorsement, ठीक है। branches should also obtain a letter from the concerned financial institution, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, मेंबर लैंडिंग बैंक इंस्टीट्यूशन authorizing the opening of the LC and undertaking to pay for the document under the relative LC। ब्रांचेस शुड ऑल्सो obtain a letter of credit, लेटर ब्रांच जो है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट लेना चाहिए, किससे? ऑप्टेन लेटर लेना चाहिए कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेंबर लैंडिंग बैंक ऑथराइजिंग द ओपनिंग ऑफ एलसी, जो ऑथराइज करे एंड अंडरटेक टू पे द डॉक्यूमेंट अंडर द रिलेटिव एलसी, ठीक है। दिस लेटर शुड प्रिफरेबली बी ऑब्टेन्ड अनएम्बिगुअसली, मतलब उसमें कोई लफड़ा लोचा नहीं होना चाहिए, वर्डेड एंड विदाउट एनी सब्जेक्टिव क्लॉज सच ए बॉरोवर फुलफिलिंग सर्टेन टर्म कंडीशन, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट जो है असेसमेंट, मोर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमारा जो है असेसमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एंड एलसी यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स आइदर लोकली और थ्रू इम्पोर्ट। एलसी हम लोग किसके लिए इशू करते हैं? यूज करते हैं परचेज ऑफ गुड्स, कहाँ से? लोकली विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। फॉर असेसिंग द एलसी रिक्वायरमेंट एन एप्लीकेंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फॉर्म द रिक्वायर्ड टू बी अपडेट, ठीक है। जब एलसी जब आप एसेस करते हैं तो आपको कुछ फैक्टर्स आपको बार बार से लेते हैं, इंफॉर्मेशन आपको बार से लेना है, ठीक है। जैसे टर्म ऑफ एलसी क्या होगा, वेदर डीपी होगा और डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस होगा।
डीपी मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, और डीए मतलब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, टर्म देखना पड़ेगा, टर्म ऑफ एलसी वेदर डीपी और डीए होगा। एवरेज अमाउंट ऑफ ईच एलसी क्या होगा, दिस विल डिपेंड अपॉन द मंथली परचेज ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, इज एस्टिमेटेड बाय एग्जामिन सोर्स ऑफ सप्लाई, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सोर्स ऑफ सप्लाई क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्काउंटेड। इन केस ऑफ इंपोर्ट द OQ इज ऑफन लार्जर इन कंपेरिजन टू इंडिजिनस परचेज। ठीक है, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो गया, वो क्या है, ऑब्वियसली हायर साइड होगा। तो पहला हो गया टर्म एंड कंडीशन हमको देखना है, वेदर डीपी है और डीए है। एवरेज अमाउंट ऑफ ईच एलसी क्या होगा। तीसरा पीरियोडिसिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होगा, पीरियड, सप्लाई का पीरियड क्या होगा, सप्लाई का पीरियड क्या होगा। वंस द EOQ इज नोन, द नंबर ऑफ एलसी टू बी अपेंड इन a ईयर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एनुअल परचेज बाय द EOQ। ठीक है, जब हमको EOQ पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलसी खोल सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एनुअल परचेज बाय EOQ। फ्रीक्वेंसी फॉर ओपनिंग एलसी विल बी 12, 12 एलसी हम खोल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलसी टू बी ओपन इन ईयर। ठीक है, क्रेडिट पीरियड अवेलेबल क्या है, यूजांस है कि क्या है, लीड टाइम क्या है, लीड टाइम द टाइम टेकन टू रिसीव द गुड्स आफ्टर ओपनिंग ऑफ एलसी नोन लीड टाइम। लीड टाइम किसे बोलते हैं, जब हमने एलसी ओपन कर दिया और इसके बीच में गुड्स जब आया, दोनों के बीच का जो समय है उसे ही हम लीड टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड टाइम। ठीक है, एलसी आउटस्टैंडिंग एट द पर्टिकुलर टाइम, द टाइम टेकन फॉर वन एलसी टू रिमेन इन फोर्स depend upon a lead time and usance available to purchaser from the date of receipt of goods। ठीक है, तो if the frequency of opening LC is less than this, bank will have more than the one LC outstanding at a particular point of time। क्या होगा, अगर मान लीजिए if the frequency of opening LC is less than this, अगर इससे कम होता है तो बैंक will have more than one LC outstanding at any particular point of time। मतलब कहने का हो गया, द टाइम टेकन फॉर ऑन एलसी टू रिमेन इन फोर्स डिपेंड अपॉन द लीड टाइम। लीड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जब तक फोर्स इन फोर्स रहेगा तब तक उसकी सप्लाई नहीं हो जाए। ठीक है, एंड द यूजांस अवेलेबल टू द परचेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीव गुड्स। तो उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ एलसी ज़्यादा हो सकते हैं। मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, इफ द टोटल लीड टाइम इज 30 डेज, मान लीजिए 30 दिन का समय है जिस दिन आपने एलसी ओपन किया एलसी, और उस दिन से गुड्स यहाँ रिसीव हुआ एक, अब ये 1 तारीख था और ये 30 हो गया, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। ठीक है, एंड यूजांस 6 मंथ है, मान लिया अब यहाँ पे यूजांस है 6 मंथ, यूजांस 6 मंथ है, 6 मंथ है। ठीक है, तो क्या होगा फिर, 6 मंथ है तो द टोटल टाइम ऑफ एलसी विल रिमेन नॉट स्टैंडिंग कितना दिन रहेगा, 1 मंथ का लीड टाइम हो गया, मतलब जिस दिन आपको गुड्स मिलेगा प्लस 6 मंथ का यूजांस है, मतलब एलसी आपको 7 मंथ तक क्या रहेगी, ओपन स्टेटस में रहेगी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, इफ द टोटल एनुअल परचेज ऑफ गुड्स इज 6 करोड़, मान लीजिए 6 करोड़ का परचेज है एंड ईओक्यू, ठीक है, ईओक्यू कितना है, 1 करोड़। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एलसी इज एवरी 2 मंथ। ठीक है, कैसे, मान लीजिए आपका टोटल 6 करोड़ का ऑर्डर है, इफ द टोटल एनुअल परचेज ऑफ गुड्स इज 6 करोड़ एंड ईओक्यू इज 1 करोड़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग कितना हो जाएगा, 6 करोड़ बाई 1 करोड़। ठीक है, अब ये 12 मंथ का है तो डिवाइडेड बाई 6, 1 करोड़ की एलसी थी, तो हर 2 महीने पे आपको एक एलसी खुलेगी। इट मीन्स दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी 4 एलसी आउटस्टैंडिंग, 4 एलसी तो कम से कम रहेगा। 1 मंथ का आपका जो है
1 मंथ का लीड टाइम प्लस 6 मंथ का ये, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड राउंडेड नेक्स्ट फिगर, टोटल 7 होगा। आई द अमाउंट ऑफ ईच एलसी इज 1 करोड़, द टोटल एलसी लिमिट विल बी 4 करोड़। तो 4 करोड़ का एलसी लिमिट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 6 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार देखते हैं, 6 करोड़ का ये है परचेज ऑफ गुड्स ऑर्डर है। ईओक्यू जो है, ईओक्यू जो है आपका 1 करोड़ है, 1 करोड़ का। तो 12 महीने में कितने बार वो एलसी बनेगी? 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। मतलब हर 2 महीने पे एक बार एलसी आपकी ओपन होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होगी हर 2 महीने की होगी। हाँ, तब क्या हमारे पास टोटल कितनी एलसी हर 2 महीने पे एक बार खुलेगी, ठीक है। इट मीन्स दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी 4 एलसी आउटस्टैंडिंग, 7 डिवाइडेड बाई 2 अराउंड नेक्स्ट फिगर। एज द अमाउंट ऑफ एलसी इज 1 करोड़, टोटल एलसी लिमिट विल बी 4 करोड़, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स टू बी केप्ट ऑल टाइम, ठीक है। एंड नेक्स्ट एज द अमाउंट ऑफ ईच एलसी इज 1 करोड़, द एलसी लिमिट विल बी 4 करोड़, ठीक है। तो एलसी लिमिट कितना हो जाएगा? 4, जब 4 एलसी आउटस्टैंडिंग रहेगा तो 1 करोड़ इंटू 4 इक्वल टू 4 करोड़ की एलसी। तो ये देखना होगा मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स टू कीप ऑल टाइम रखना पड़ेगा। स्टोरेज फैसिलिटी है या नहीं, कोटा अलॉटमेंट, मिनिमम साइज ऑफ ईच कंसाइनमेंट, मिनिमम साइज ऑफ ईच कंसाइनमेंट क्या है, फ्रेट कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, शेयर वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड अंडर द एलसी, ठीक है। शेयर वैल्यू, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। शेयर वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड अंडर द एलसी, एलसी के अंडर ये होना चाहिए। एलसी टू बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ गुड्स ओनली, कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सीआईएफ वैल्यू बार बार जो होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है। अरेंज टू फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस एंड यूसीपीडीसी प्रोविजन इतिशी मेथोडोलॉजी डीपीएलसी, ठीक। जैसे एक जो है यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये क्या था, हमने क्या देखा है, ये फॉल हमको जब असेसमेंट करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट का, ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना है कि डीपी है या डीए है, अमाउंट ऑफ एवरेज एलसी क्या होगा, पीरियोडिसिटी क्या होगी सप्लाई की, ठीक है, ईओक्यू, ठीक है, क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है या नहीं, यूजांस है कि नहीं, लीड टाइम किसे बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ एलसी एंड सप्लाइंग ऑफ गुड्स के बीच का जो समय होता है उसे यूजांस पीरियड लीड टाइम बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स टू बी कीप्ट ऑल टाइम, स्टोरेज फैसिलिटी है या नहीं, कोटा अलॉटमेंट है कि नहीं, मिनिमम साइज ऑफ ईच कंसाइनमेंट क्या है, फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस चार्जेस क्या है, शेयर वैल्यू के हिसाब से ही गुड एलसी परचेज हो रहा है, जो सामान गुड्स प्रोक्योर हो रहा है अंडर एलसी वो शेयर वैल्यू का है या नहीं, एलसी टू बी असेस्ड ऑन बेसिस ऑफ शेयर वैल्यू, फेमा की गाइडलाइंस एसेस अडर हो रही कि नहीं, ये हमें कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो अप करना है, ठीक है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, इस मान लीजिए टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 48 लाख का,
48 lakhs का टोटल रॉ मटेरियल परचेज है, ठीक है। आउट ऑफ विच परचेज अंडर एलसी 50%, और विच परचेज अंडर एलसी, टोटल परचेज उसने किया 48 lakhs का पार्टी ने, उसके में एलसी के थ्रू जो परचेज किया जाने वाला है वो 24 lakhs का है। अब उसमें जो है इंपोर्ट एलसी में जो है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अंडर एलसी 50%। टोटल आइटम जो परचेज, देखिए क्या है, तीन चीजें हो गई। एक उदाहरण है आपका जिसमें दिया है कि कोई भी रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहा है, ठीक है, वो 48 lakhs का है, उसके बीच अंडर में एलसी में जो है वो 24 लाख का है, और इस 24 लाख में जो है वो रॉ मटेरियल है 12 लाख। तो असेसमेंट ऑफ इनलैंड एलसी हम कैसे करेंगे, देखिए लीड टाइम 2 महीने, लीड टाइम 2 महीने का है, लीड टाइम आपका कितने महीने का है, 2 महीने का है। लीड टाइम्स कितने का था, 2 मंथ का, ठीक है। फिर से एक बार देख ले, टोटल परचेज 48 lakhs का, आउट ऑफ इसका 50% जो है वो एलसी के थ्रू जाएगा, और इस एलसी में जो है 50% आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ इनलैंड एलसी, लीड टाइम आपका 2 मंथ है, जिस दिन हमने एलसी खोला उस दिन से गुड्स रिसीव होने के बीच का टाइम, लीड टाइम देखिए 2 मंथ्स का, ठीक है। मंथली परचेज क्या हो जाएगा रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का मंथली परचेज कितना हो जाएगा, जो आपने एलसी के थ्रू जो इंपोर्ट किया वो कितना है, 24 में से 12 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, मतलब 12 लाख रुपया हो गया आपका मंथली प्राइस ऑफ इंडिजिनस एसेट्स का, और ये 12 महीने चलेगा, मतलब 1 लाख, ठीक है। 1 लाख अगर हमने लाख मान लिया, तो इनलैंड एलसी का रिक्वायरमेंट जो होगा कितना होगा, मंथली परचेज हो गया आपका 1, ठीक है, इंटू लीड टाइम आपका कितना हो गया 2 महीना, तो ये टोटल हो जाएगा आपका इनलैंड एलसी 2 लाख का रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा इनलैंड एलसी का कैलकुलेशन, असेसमेंट। अब इंपोर्ट एलसी अगर लेना हो तो मंथली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 1, लीड टाइम 4 मंथ का है, 4 मंथ का लीड टाइम रहेगा, ठीक है। इंपोर्ट एलसी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा फिर, 1 मंथ का आपका मंथली परचेज है, प्लस लीड टाइम आपका 4 मंथ है, मतलब 4 लाख की आपकी एलसी है। तो टोटल एलसी इनलेट प्लस आउट, इनलैंड प्लस इंपोर्ट, दोनों एलसी मिलकर कितना होगा, 2 लाख का यहाँ था, प्लस 4 लाख, टोटल 6 लाख का। तो मेथोड ये जो है ये आपका एलसी का असेसमेंट हो गया। ये किसका था, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट परचेज, ठीक है, डीपी। डीपीएलसी का था फॉर्मूला। डीपीएलसी में क्या है, टोटल एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया 1248, इसमें से 50% आपको एलसी के थ्रू आना है 24 lakhs, आउट ऑफ 50% आपको रॉ मटेरियल 12 महीने, लीड टाइम आपका 2 मंथ का है, तो मंथली परचेज कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इंडिजिनस एसेट्स के लिए 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा इनलैंड एलसी का रिक्वायरमेंट कितना हो गया, मंथली परचेज हो गया हमारा, सॉरी लीड टाइम हो गया 2, मंथली परचेज हो गया 1, मतलब ये 2 करोड़, 2 करोड़ या 2 लाख। अब इंपोर्ट एलसी है, इंपोर्ट एलसी में क्या है, 1 महीने का ही मंथली परचेज टाइम होगा 12/12, ठीक है, ठीक है। 1 करोड़ का 1 लाख का लीड टाइम आपका 4 महीने का है सप्लाई ऑफ गुड्स तक, तो इंपोर्ट एलसी कितना रिक्वायर्ड हो गया 4:1, 4 lakhs, ठीक है। तो टोटल इंपोर्ट एलसी कितना हो गया 2 lakhs प्लस 4 lakhs इक्वल टू 6 lakhs, ठीक है। ये हो गया डीपीएलसी, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट परचेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीएलसी। अब इसमें एक चीज कहता है, इन टाइप ऑफ एग्जांपल एज्यूम दैट देयर इज यूजांस 2 मंथ अवेलेबल इन द बोथ केसेस, दोनों केस में यूजांस 2 मंथ का अवेलेबल, व्हाइल असेसिंग द एलसी रिक्वायरमेंट द यूजान पीरियड इज टू बी एडेड टू बी द लीड टाइम अंडर, लीड टाइम में अगर 2 महीने का यूजांस है, जैसे लीड टाइम आपका कहीं का 4 मंथ का है तो 2 महीना ये हो गया और 1 महीने का ये, तो 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 lakhs की एलसी आपको देनी पड़ेगी। यूजांस पीरियड आपको 2 महीना बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करना है।
ठीक है। नेक्स्ट है डीएलसी। ठीक है, डीएलसी क्या है, डीएलसी में, ठीक है। अब डीएलसी में क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन। तो इंडियन एलसी रिक्वायर्ड है मंथली परचेज इनटू लीड टाइम प्लस यूजेंस। मंथली परचेज कितना था, 1, ठीक है, इनटू लीड टाइम प्लस यूजेंस पीरियड 2 महीने, 4 इंटू 4 में तो 4 लाख रुपए का। इंपोर्ट एलसी के केस में है मंथली परचेज आपका फिर वही था 1 इंटू लीड टाइम हो गया आपका 4 मंथ प्लस यूजेंस तो 6 लाख रुपए का। तो टोटल एलसी कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या है, डीएलसी है, तीसरा है डीएलसी इन ईओक्यू। ठीक है, ईओक्यू बेसिस पे है। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल पर जो है वो कितना है, 24 लाख का। ठीक है, ईओक्यू वैल्यू क्या है, ईओक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ कहता है मैच्योरिटी सी, डीएलसी विथ ईओक्यू। अगर ईओक्यू लगा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लगा है, तो क्या होगा, टोटल एनुअल रॉ परचेज ऑफ मटेरियल कितना है, 24 लाख का। मिनिमम ऑर्डर लेवल जो है ईओक्यू बी ये 6 है, 6 लाख का। तो लीड टाइम 1 मंथ है, यूजांस 6 महीने का, यूजांस आपको 6 महीना दिया हुआ है, मतलब टोटल आपको 7 मंथ होगा। टोटल लीड टाइम कितना होगा, टोटल कितना होगा लीड टाइम, 7 मंथ। तो नंबर ऑफ एलसी ओपन क्या हो जाएगा, 24/6। ठीक है, नंबर ऑफ एलसी कितना खोलेंगे हम, 24 डिवाइडेड बाई ईओक्यू। ठीक है, 4। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा एलसी का, फ्रीक्वेंसी क्या होगा एलसी का, 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3। 3 मंथ में एक एलसी खुलेगी। तो एलसी आउटस्टैंडिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, सी बाई ई, सी हो गया 7 डिवाइडेड बाई 3, 2.33 एलसी आपका हमेशा आउटस्टैंड करेगा। राउंड ऑफ में करेंगे तो 2 रहेगा। ठीक है, तो एलसी लिमिट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6, 12 लाख रुपए, 12 लाख की एलसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, एलसी लिमिट विदाउट ईओक्यू, ये एलसी लिमिट हो गया विथ ईओक्यू, और विदाउट ईओक्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 2.33 इंटू 6, 2.3666। तो कितना हो जाएगा ये, 14 लाख रफली। तो ये आपका 3 तरीका हो गया, एक डीपीएलसी, डीएलसी और डीपी डीएलसी विथ ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, the processing officer will have to carefully evaluate the appropriateness of the usance period and the lead time as assessment primarily depend upon the this data। assessment इसी के बेसिस पे होता है, lead time and usance क्या है उसमें। moreover the projection of purchase and LC creditors will have to be consonant with the CMA data which will be obtained। ठीक है, क्या कहता है, moreover projection of purchase and LC creditors will have in consonance with the CMA data, CMA data के बेसिस पे है, which will be obtained by the bank wherever the applicable as per the policy of individual। The assessment of limit under the MPBF method for fund based limit will also take in consideration of the fact। इसको हमको भी जो है MPBF मेथड में अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कहता है ऑफन DALC गेट कन्वर्टेड ऑन ड्यू डेट्स टू द बायस क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, बायस की क्रेडिट फैसिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है किस दिन, ड्यू डेट के दिन। ठीक है, एंड गेट सेपरेटेड सपोर्टेड बाय लेटर ऑफ कंफर्ट इशूड बाय द बैंकर। ठीक है, लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर देता है बैंक, उसके बेसिस पर उसका बायर का काम। व्हाइल लेटर ऑफ कंफर्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट अंडरटेकिंग इन द लेटर ऑफ क्रेडिट if there is a moral reputational aspect which the banker cannot ignore and repudiation of the liability under the letter of comfort is not easy। ठीक है, लेटर ऑफ कंफर्ट में कोई गारंटी नहीं होती है फ्रेंड्स,
अब लेटर ऑफ क्रेडिट्स में क्या है, बैंक की गारंटी होती है, बैंक का रेपुटेशनल भी ये होता है, ठीक है। मोर ओवर द लेटर ऑफ कंफर्ट आर ऑल्सो इशूड इन अ लार्ज नंबर ऑफ केसेज इन द बैंक्स ओन branches abroad. Banks do not differentiate between such letter of credit. Bank do not differentiate between such letter of comfort and letter of credit guarantee and composite limit for a letter of credit. ठीक है, letter of comfort is a sanction to the customers. ठीक, क्या कहता है, बैंक do not differentiate, भेदभाव नहीं करता between such letter of comfort and letter of credit के बीच में, and a composite limit of letter of credit and letter of comfort is sanction to, मतलब हम लोग composite limit भी sanction करते हैं letter of credit and letter of comfort. It may be ensured that no LC for capital goods may be established without adequate term facility against the purchase. देखिए, कोई भी चीज़ है, कोई भी एलसी अगर हम है कैपिटल गुड्स का, हम जब तक इशू नहीं करेंगे जब तक हम उसको टर्म लोन फैसिलिटी ग्रांट नहीं किए हुए हैं, ठीक है, या एडिक्वेट नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा बायर्स क्रेडिट, ये इतना है। बिल्स परचेज डिस्काउंटिंग यहाँ तक आते हैं, बायर्स क्रेडिट तक आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बायर्स क्रेडिट क्या है? बायर्स क्रेडिट refers to the loans. Buyer's credit refers to the loans for payment of imports arranged on behalf of importers through an overseas bank. ठीक है, Buyer's credit क्या है? refers to the loans को रेफर करता है for payment of imports का जो पेमेंट हुआ है on behalf of importers through overseas bank. The offshore branch credit the nostro account. offshore जो branch है वो nostro account credit करती है of the Indian bank and the bank uses the fund and makes the payment to the exporter. बैंक क्या करता है, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है, ठीक है। ऑफशोर ब्रांच जो है क्या करती है, नोस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट करती है और बैंक क्या करता है, उस फंड को यूज करके एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है। बैंक एज ए इम्पोर्ट बिल पेमेंट ऑन ड्यू डेट। एक्सपोर्टर बैंक एज ए किसको पेमेंट करता है, एक्सपोर्टर बैंक को एज एन इम्पोर्ट बिल पेमेंट ऑन ड्यू डेट। दिस अरेंजमेंट आर यूजुअली इनिशिएटेड बाय सप्लायर। किसके द्वारा यूज किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, सप्लायर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द सप्लायर्स कंट्री मेक ए लोन फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड। ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सप्लायर की कंट्री का, वो क्या करता है, एक लोन, मेक ए लोन फॉर द पीरियड रिक्वायर्ड एंड करेंसी एग्रीड ऑन डायरेक्ट टू बायर फॉर द बैलेंस ऑफ अमाउंट ओइंग टू द सप्लायर आफ्टर इनिशियल पेमेंट ऑफ बिफोर शिपमेंट एज एग्रीड एज मेड। ठीक, दिस लोन इज यूज्ड टू पे द सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, एंड फ्रॉम देन ऑन ही हैज नो फर्दर इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन। उसको ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं है। He has received payment in full without recourse. Without recourse होता है, देखिए फ्रेंड्स, एक विथ रिकोर्स होता है और एक होता है विदाउट रिकोर्स, हम जो आगे चल के हम देखेंगे। ठीक है, however with the presence of large number of how the presence of large number of Indian banks abroad, they are at present big player in providing buyers credit to the Indian importers। ठीक है, क्योंकि however with the presence of large number of, हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा है, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ज़्यादा है अब्रोड में, they are present big players in the provide buyers credit to the Indian importer के लिए। For this purpose an LC on DA basis, document against acceptance, is opened by Indian importers banker। इंडियन importers का जो banker है for credit period allowed by the foreign supplier। ठीक है, thereafter on expiry of this credit period the Indian importer approaches for the loan given by the buyer's credit which is utilized for settlement of payment under the LC। ठीक है, क्या होता है, जब एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जब क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाता है तो इंडियन इंपोर्टर जो है वो क्या है, अप्रोच करता है फॉर द लोन गिवन एज ए बायर क्रेडिट विच इज यूटिलाइज फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट अंडर द एलसी। एलसी के सेटलमेंट के लिए, किससे, बायर्स क्रेडिट के थ्रू। फैसिलिटेट ग्रांटिंग ऑफ द बायर्स क्रेडिट टू द इंडियन इंपोर्टर फॉर ए फर्दर पीरियड, द फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक ऑफ एनी अदर बैंक लुक्स फॉर ए लेटर ऑफ कंफर्ट फॉर इंपोर्टर्स बैंक इन इंडिया। ठीक है, क्या कहता है कि फैसिलिटेट ग्रांटिंग ऑफ बायर्स क्रेडिट, बायर्स क्रेडिट देने के लिए
तो इंडियन इम्पोर्टर फॉर ए पीरियड, द फॉरेन ब्रांच ऑफ द इंडियन बैंक और एनी अदर बैंक वो क्या करता है, लेटर ऑफ कंफर्ट मांगता है किससे, इम्पोर्टर से, इम्पोर्टर बैंक इंडियन के, ठीक है। बेनिफिट क्या है बायर्स क्रेडिट का, द एक्सपोर्टर गेट्स पेड ऑन ड्यू डेट को एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल जाता है, एंड द इम्पोर्टर गेट्स टाइम फॉर मेकिंग एन इम्पोर्ट पेमेंट एज पर द कैश फ्लो के हिसाब से पेमेंट के लिए उसको समय मिल जाता है। द इम्पोर्टर कैन डील विद द एक्सपोर्टर ऑन साइट बेसिस के बेसिस पर डील होता है, negotiate a better discount and use the buyer's credit route to avail financing। तो फंडिंग करेंसी विल भी क्या होगा, वो जो भी फंडिंग करेंसी है हमारा इन एनी फॉरेन करेंसी, यूएसडी, जीबीपी, यूरो एंड जापानीज येन etc डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ कस्टमर, ठीक है। ये बेनिफिट होगा। द एक मिनट, ठीक है। द करेंसी द करेंसी ऑफ इंपोर्ट कैन बी इम्पोर्ट द करेंसी ऑफ इंपोर्ट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फंडिंग करेंसी, डिफरेंट हो सकता है, विच इनेबल इंपोर्टर टू टेक फेवरेबल व्यू ऑफ द पर्टिकुलर करेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सप्लायर क्रेडिट। एक तो होगा बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट क्या है, सप्लायर क्रेडिट रिलेट टू द क्रेडिट फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर। ओवरसीज सप्लायर जो है सप्लायर्स क्रेडिट देता है इंडियन इंपोर्टर को फॉर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यूजान्स बिल under letter of credit issued by Indian banks on behalf of their importers are discounted by the Indian bank overseas branches of a foreign branch, ठीक है। अब कहता है यूजांस बिल जो है जिसमें टाइम पीरियड रहता है, जैसे लीड टाइम प्लस 6 मंथ का यूजांस था, ठीक है। बिल्स अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय इंडियन बैंक ब्रांचेज ऑन बिहाफ ऑफ देयर इंपोर्टर्स, मतलब एप्लीकेंट, ठीक है, आर डिस्काउंटेड बाय द इंडियन बैंक, इंडियन बैंक ही डिस्काउंट करता है या ऑफ इंडियन बैंक ओवरसीज ब्रांचेज और फॉरेन बैंक, ठीक है। इंडियन बैंक की ओवरसीज ब्रांच अगर है तो वो डिस्काउंट करेगी, अदरवाइज फॉरेन बैंक जो उसका अरेंजमेंट होगा इंडियन बैंक के साथ, ठीक है। अंडर दिस अरेंजमेंट पेमेंट आर मेड टू द सप्लायर बाय द इंपोर्टर ओवर द एग्रीड पीरियड इन द करेंसी एग्रीड एंड इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, इस एग्रीमेंट में पेमेंट जो होता है सप्लायर को होता है बाय द इंपोर्टर ओवर द एग्रीड पीरियड, जो पीरियड में एग्री हुआ है, जिस करेंसी में एग्री हुआ है और जिस टर्म एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री हुआ है। The supplier makes whatever the arrangement are open to him the borrow in his own name so that he can permit deferred payment from the buyer, and the interest cost of obtaining such finance will be reflected in his price of equipment। उसमें क्या इंटरेस्ट कॉस्ट जोड़ लेगा, भैया देगा तो क्रेडिट पीरियड तो इंटरेस्ट जोड़ेगा ना, वो जोड़ लेता है। इंपोर्टर्स लायबिलिटीज टू सप्लायर अंटिल पेमेंट इज कंप्लीट, इंपोर्टर की लायबिलिटी कब तक है सप्लायर के प्रति, जब तक कि पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है इंपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर फंड फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। चीपर फंड मिल जाता है रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, ईच शॉर्ट टर्म फंड प्रेशर एज एबल टू गेट क्रेडिट, ठीक है। एबिलिटी टू नेगोशिएट बेटर प्राइस विद सप्लायर्स, ठीक है। एबिलिटी किसको मिल जाती है, सप्लायर्स इंपोर्टर्स को नेगोशिएट करने के लिए फॉर बेटर प्राइस विद सप्लायर्स, एबल टू मीट द सप्लायर रिक्वायरमेंट, पेमेंट एट साइट, ठीक है। सप्लायर का जो रिक्वायरमेंट है एट साइट पेमेंट के लिए उसको फैसिलिटी मिल जाती है, रियलाइज एट साइट पेमेंट, अवॉइड द रिस्क ऑफ इंपोर्टर्स क्रेडिट बाय मेकिंग सेटलमेंट विद एलसी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर सप्लायर्स क्रेडिट, ठीक है। क्या चीपर फंड मिल जाता है इंपोर्टर्स को फॉर इंपोर्ट, ईज हो जाता है इसमें शॉर्ट टर्म फंड प्रेशर एज एबल टू गेट क्रेडिट, एबिलिटी टू नेगोशिएट करता है सप्लायर से फॉर बेटर प्राइस, एबल टू मीट सप्लायर रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट एट साइट, रियलाइज एट साइट पेमेंट, अवॉइड रिस्क, ठीक है। ओके फ्रेंड्स आज लगभग हो गया 1 घंटे का। फ्रेंड्स मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, इसको आप जरूर देखिए और सुनिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएबीएफ का एग्जाम इतना इजी नहीं है जितना हम अगर उसको ले रहे हैं, ठीक है। 1 घंटे की मेहनत डेली में करता हूँ आप सबके लिए। इसके बाद देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इसकी समरी आपको बताऊंगा, ठीक है, सबकी समरी, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है।
ओके फ्रेंड्स, तब तक अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।